Hello students, in this video we are going to study about some basic concepts of accounts. Some basic concepts of accounts. You can say this is your chapter number 2, basic accounting concepts. So what are basic accounting concepts? So there are so many means you can say that like this is basic as you can read it. So without understanding this chapter you can't understand the accountancy. You can't understand the accountancy without understanding this chapter. So first you should have to understand this chapter very carefully. Means each and every term you have to understand, or the you can say the chapter is basic accounting terms or concepts. So the first thing is business transaction. First thing is business transaction. So as the name suggests, transactions means len den. In Hindi it is called len den. As the name suggests, any transaction which occurred in business, any transaction which occurred in business is called business transaction. कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस में हुई है उसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन. बट जनरली इन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स sometimes there are some kind of transaction in which cash is not involved, in which there is no financial you can say there is no financial exchange. There are some transactions in which there is no financial exchange, or you can say there are two types of transaction. In one you can say quantitative, another one you can say qualitative. Qualitative exact means you are doing or selling or purchasing anything, means you are doing something, but in return of that you are not expecting profit or money. You are doing that thing for providing service only, or you can say for charity or for social welfare. Charity or social welfare. So such type of transactions are not need to be recorded in the accounts. इस टाइप की ट्रांजेक्शन्स को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते. दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ बिजनेस अकाउंटेंसी ऑल्सो, कि ये अकाउंटेंसी की एक लिमिटेशन भी है कि इन अकाउंटेंसी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड. अकाउंट्स में क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को हम इग्नोर करते हैं. इग्नोर करना इन द सेंस कि आपका वॉट एवर ट्रांजेक्शन यू हैव डन, उसमें जो भी प्रोडक्ट है, मीन्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आइदर इज़ वेरी गुड और वेरी बैड, इट डजेंट मैटर्स. Quality of the product doesn't matter. The thing which only matter is the amount. The thing which only matters is the amount. So that's why we can say that qualitative elements are not measured in terms of accounts, or you can say qualitative elements are ignored. This is one of the limitation also. So in business transaction you can find quantitative transactions as well as qualitative. Quantitative you can also say that financial transactions. So quantitative you can also say financial transactions. Means in quantitative transactions only those transactions are recorded in which there is some monetary value, जिनकी कोई monetary value हो. Monetary value transaction having monetary value are only recorded. So this is the first point, business transaction. Business transaction means those transactions which occurred in a business. Those transactions which occurred in a business are called business transaction. It can be of quantitative or qualitative also. It can be of quantitative nature and qualitative nature also, but we don't need to record the qualitative transactions. We don't need to record the qualitative transaction. We have to record only quantitative transactions. And quantitative you can also say financial transactions. Quantitative means those transactions in which you are providing services or charity, or you are doing social welfare, means in return of which you are not getting money. In return of which you are not getting money, or you don't have the obligation to get the money. आपके पास अधिकार भी या right भी create नहीं हो रहा है, because there are so many transactions in which we are not getting immediately money, but still we are recording, because in those transactions we will record the amount in future. But here those transactions are recorded in which no obligation to receive the amount or money is created.
या कह लीजिए कोई राइट हमारे पास क्रिएट नहीं होता, नो राइट इज़ क्रिएटेड to ask for the money. But in financial transaction, and financial transaction and quantitative means those transaction in which money is involved, either it has to be received on immediate or in future. So this was your first point, business transaction. Moving towards the second point, that is drawing. Second point is drawing. So drawing means amount. Amount means cash or anything else, means any product or stock, anything else. So cash or stock or anything else withdrawn from the firm, withdrawn from the firm for personal use. कि कैश या फिर कोई ऐसा सामान जो कि फर्म से विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज़, और इट कैन बी डोमेस्टिक यूज़, such kind of words will be given in your book or you can find in questions. So amount withdrawn from the firm, for personal use, कि वो अमाउंट जो कि फर्म से विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए, दैट विल बी कॉल्ड एज ड्राइंग, दैट विल बी कॉल्ड एज ड्राइंग. Second thing, next thing is capital. Next thing is capital. So basically capital is what? Amount invested at the time of starting up of a business. कि whenever you are going to start a business, whatever amount you are investing, that is your capital. So amount, again here amount includes cash or anything else also. कि suppose at the time of starting of business you are investing cash, and along with cash you are bringing your own furniture, your household furniture into the business. कि बिजनेस स्टार्ट करने टाइम आप अपना कैश तो लेके आ ही रहे हैं, बट अलॉन्ग विद कैश यू आर ब्रिंगिंग द फर्नीचर विच इज़ केप्ट एट योर होम इनटू द बिजनेस. कि आपका फर्नीचर जो आपके घर पे रखा हुआ है, आप उस फर्नीचर को अपने बिजनेस में लेके आ रहे हैं, तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ कैपिटल. उसे भी हम कैपिटल ही कहेंगे. सो दिस इज़ योर कैपिटल. सो कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड net worth. Capital is also called net worth, or you can use a word only equity or owner's equity. Generally what it is called, owner's equity instead of equity. So owner's equity, net worth are the other names of capital. Net worth and owner's equity. Moving towards the next point, that is assets. So assets are what? Legal right or properties. Legal rights or properties owned by a firm. Means those legal rights or properties which are owned or controlled by a firm. means जिन properties पे फर्म का अधिकार हो, जो फर्म की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर कॉल्ड एज एसेट्स. उन्हें क्या कहा जाएगा? एसेट्स. सो लीगल प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय अ फर्म आर कॉल्ड एसेट्स. जिन चीज़ों के ऊपर आपका अधिकार हो वो आपकी क्या कहलाएंगी? एसेट्स. ठीक है. अच्छा सॉरी, इससे पहले कैपिटल के बारे में वन थिंग ऑल्सो, कि अमाउंट इन्वेस्टेड द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अप ऑफ अ बिजनेस, बट समटाइम, ये तो कैपिटल हो गया, बट समटाइम इट हैपन्स दैट ड्यूरिंग द मिड ऑफ द बिजनेस और कंटिन्यूशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस आपका चल रहा है, स्टिल यू नीड सम एक्स्ट्रा मनी. सो अगेन owner is invested some more amount. So that amount is also called capital, but there is a word used for that is called additional capital. What it is called? Additional capital means when amount is invested not at the time of starting but during mid of the business. It mid doesn't exactly means कि exact mid होना चाहिए. मीन्स बिजनेस स्टार्ट होने के बाद अगर आप कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज एडिशनल कैपिटल. वो भी कैपिटल है, बट उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? एडिशनल कैपिटल. हाँ. सो फोर्थ पॉइंट वॉज एसेट्स. सो लीगल प्रॉपर्टीज़ ओन्ड बाय अ फर्म, कि एक फर्म की जो भी अपनी लीगल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? एसेट्स. सो इन अदर वर्ड्स और टर्म्स यू कैन से, कि जिन चीज़ों के ऊपर आपका राइट हो, यू हैव अ राइट ऑन दोज थिंग्स, ऑन वॉट एवर थिंग्स, दे विल बी योर
एसेट्स। इन हिंदी यू कैन यूज़ अ वर्ड अधिकार। जिन चीज़ों के ऊपर आपका राइट है या अधिकार है उन्हें आप क्या कहेंगे? एसेट्स। चलिए देखते हैं आगे। सो एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू नॉन करेंट एसेट्स, थ्री टाइप्स और पार्ट्स. Assets are divided into three types. First, non-current assets. Second, current assets. And third one is fictitious assets. Fictitious assets. These are the three types of assets we have: current asset, non-current asset, and fictitious assets. As the name suggests, current means, maybe you have heard about current affairs. So current affair means which is going on within nearby. So current assets means also those assets which have a, you can say, validity, you can say which have a validity maximum up to 1 year. जिनकी वैलिडिटी मैक्सिमम कितनी है? 1 year. या कह लीजिए वो एसेट जो 1 year तक ही रह पाते हैं हमारे पास, उनको करंट एसेट कहा गया है. नॉन करंट एसेट मीन्स दोज एसेट्स हुज वैल्यू इज मोर देन 1 year और विच कैन बी विद अस फॉर मोर देन 1 year. वो एसेट जो हमारे साथ या हमारे पास 1 साल से ज़्यादा रहते हैं, दे विल बी कॉल्ड एज नॉन करेंट. एंड दो एसेट्स विच आर विद अस फॉर मैक्सिमम टाइम पीरियड, दैट इज़ 1 year, आर कॉल्ड करंट एसेट. इसका डिस्कशन बाद में करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स का. सो नॉन करंट assets are further divided into 5 parts or 4 parts, but we don't need to study that much. हम सिंपली एक ही पॉइंट या 2 पॉइंट देख लेते हैं, that is fixed assets. First one is fixed asset. Fixed asset is also divided into 2 parts. First is tangible asset and second one is intangible asset. First one is tangible asset, second one is intangible assets. तो चलिए देखते हैं. So fixed are divided into 2 parts, tangible and intangible asset. Fixed means assets which are fixed in nature. Assets which are fixed in nature. Fixed means which have a validity of more than 1 year. Same meaning suggests, but it's just a part of non-current assets. So fixed asset include tangible and intangible. Tangible assets means those assets which can be seen, touched, or having physical existence. Those assets which can be seen, touched एंड हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, कि वो एसेट जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, दे आर कॉल्ड एज टेंजिबल एसेट्स. उन्हें क्या कहा जाएगा? टेंजिबल एसेट्स. फॉर एग्जाम्पल, suppose if we talk about this book, then we can see this book, we can touch this book, so we can say that this one is a tangible asset. हम कह सकते हैं कि ये क्या था? हमारा tangible asset था. Same you can take any other example also. Next one is intangible asset. Intangible asset means those assets. Intangible assets means those assets which we can't see, and which don't have any physical existence. जिसकी कोई physical existence भी नहीं होती है. The presence of that can be only felt. The presence of that can be only felt. जिसकी presence को हम केवल महसूस कर सकते हैं. So tangible assets is clear and intangible is also clear. That tangible means those assets which we have physical existence, which we can see, touch, etc. And intangible assets are those assets which we can't see, which don't have any physical existence, which we can't touch. We can feel the presence of intangible assets only. For example, you can say intangible assets as furniture, machine, etc. I'm writing it here. Example of tangible assets, you can see furniture, plant, machinery, building, car or vehicle, anything, etc. So they will be called as tangible assets. Intangible assets include intangible. देखिए हम क्या करते हैं, वी कैन सी ऑल दीज थिंग्स एंड वी कैन फाइंड द प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स. So that's why they are called as tangible. While intangible assets includes goodwill, patents, trademark,
copyright, software, etc. Intangible assets include these things. So goodwill, patent, trademark, copyright, software, etc. Now what they mean? So please have a look. As I told you, the first thing is goodwill. So what is goodwill? Goodwill is an intangible asset, and and it is the present value of the effort applied in the past, or you can say, I'm telling you, reputation of a firm कि किसी भी फर्म का जो भी नाम है मार्केट में, कि होता है ना, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को की एडवर्टीजमेंट किए बिना, मीन्स देयर आर सो मैनी फर्म्स विच आर डूइंग नॉट सो मच एडवर्टीजमेंट, स्टिल दे हैव अ वेरी गुड डिमांड इन द मार्केट, कि उन्होंने वो एडवर्टीजमेंट तो नहीं करती हैं बट फिर भी उनकी मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी खासी बनी हुई है. सपोज वी कैन से एप्पल, कि जैसा कि एप्पल फ़ोन्स के कंसेप्ट में है. इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल, मारुति सुजुकी. सो दीज आर द फर्म्स विच हैविंग अ वेरी गुड रेपुटेशन. तो ये गुडविल कहलाती है, कि वो फर्म जिनकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, जिनका प्रोडक्ट उनके नाम से ही सेल हो जाता है, तो उन्हें हम गुडविल कहते हैं. एंड गुडविल हाउ इट इज़ क्रिएटेड? तो एफर्ट्स अप्लाइड इन द पास्ट, कि आपने अपने पास्ट में जो भी एफर्ट लगाए हैं, जिनका बेनिफिट, हुज बेनिफिट इज रिसीव्ड इन फ्यूचर और प्रेजेंट, जिसका बेनिफिट हमें अभी तो मिल रहा है और साथ ही साथ फ्यूचर में मिलेगा, तो उनको हम कहते हैं गुडविल. मीन्स वो गुडविल क्या है? कि हमने जो भी पास्ट में एफर्ट लगाए हैं, जिनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा और प्रेजेंट में मिल रहा है, तो उसे कहा जाता है गुडविल. कि सपोज़ आपने, नॉर्मल सा पॉइंट है, आपको भी पता होगा, कि सपोज़ योर फर्म इज़ वर्किंग फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स. मान लीजिए आपकी फर्म जो है बीते 10 सालों से काम कर रही है, एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इन द सेंस कि आपकी फर्म की जो ज़मीन है, बिल्डिंग है, उसमें फर्नीचर जो भी रखा हुआ है, इसके जो भी स्टॉक्स हैं, इन सबको मिला जुला के टोटल, सपोज यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ हल्दीराम, कि आप एक हल्दीराम का आउटलेट ले लें. नाम आप सबको पता है, इट इज़ अ फेमस थिंग. सो यू आर गोइंग टू परचेज अ एग्जिस्टिंग आउटलेट ऑफ एन हल्दीराम, कि एक हल्दीराम का एग्जिस्टिंग आउटलेट आप परचेज कर रहे हैं. सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? आप अगर एक एग्जिस्टिंग आउटलेट परचेज कर रहे हैं, तो सपोज़ टोटल वैल्यू उस आउटलेट की मान लीजिए 2 करोड़ है, जो पूरा सेटअप है, जिसमें फूड कहाँ बनता है और टेबल चेयर ये सब कुछ इन्वॉल्व है. तो टोटल वैल्यू कितनी है? 2 करोड़. स्टिल द ओनर ऑफ दैट एग्जिस्टिंग हल्दीराम विल नॉट सेल द आउटलेट टू यू इन 2 करोड़. ही विल चार्ज सम एक्स्ट्रा अमाउंट, वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेगा. एंड वाई ही इज़ चार्जिंग एक्स्ट्रा अमाउंट? बिकॉज इन 10 सालों में, एक तो पहली चीज़ है कि ब्रांड क्या है? हल्दीराम, और 10 साल से वो वहाँ पे काम चल रहा है. इट मीन्स इन ड्यूरिंग दीज 10 ईयर्स द वैल्यू, द गुडविल ऑफ दिस हल्दीराम इज़ क्रिएटेड अलॉट. बहुत ज़्यादा गुडविल उस एरिया में बन चुकी होगी, जिसके कारण जो न्यू पर्सन आएगा, जो न्यू वेंचर जो इसको परचेज़ करेगा, ही और शी डोंट नीड टू डू एनी काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट. उसे कोई स्पेशल एडवर्टीजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ये आउटलेट पहले से ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है. तो इसी कारण से, मीन्स कोई एडवर्टीजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट वो 2 करोड़ वाले आउटलेट को भी जाके करीब 2.5 करोड़ में सेल करेंगे. सो दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 50 लाख इज़ जस्ट ऑफ गुडविल. ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया गया है 50 लाख, ये किस चीज़ का अमाउंट है? आपकी गुडविल का. सो आई होप गुडविल इज़ क्लियर. What is goodwill? In short, you can say reputation of a firm. But if you have to write at an exam, what you have to write? Value created of a firm by its past performance, and whose benefit can be arrived in future as well as at present also. कि वो एफर्ट्स जो कि फर्म ने लगाए तो पास्ट में थे, वो एफर्ट्स जो फर्म ने पास्ट में लगाए हैं, बट उनका बेनिफिट कंपनी को प्रेजेंट में ही मिल रहा है और फ्यूचर में भी मिलेगा, तो वो कहलाता हमारा गुडविल. सेकेंड थिंग आई टोल्ड यू, दैट इज़ ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क तो यू ऑल नो कि एवरी फर्म हैज़ इट्स ओन ट्रेडमार्क. हर एक फर्म का अपना खुद का एक ट्रेडमार्क होता है. कि हम बात करें नाइक का, ये हो गया सेम. फिर पेप्सी का अगर हम बात करें, तो ऐसी कुछ बॉल टाइप की होती है ना, मीन्स सर्कल, प्रॉपर सर्कल.
तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ जस्ट अ ट्रेडमार्क। एडिडास की बात करें तो हम इस टाइप का एक लोगो है। सो दिस इज़ व्हाट, ये क्या है, ये सब ट्रेडमार्क हैं। ये हर एक फर्म का अपना अपना ट्रेडमार्क होता है। एंड ट्रेडमार्क इज़ ऑल्सो एन एसेट, कि अगर आप एडिडास एडिडास का ये ट्रेडमार्क है तो नो वन कैन यूज़ दिस ट्रेडमार्क फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट। तो और कोई इंसान या और कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए इस सिंबल को यूज़ नहीं कर सकती। सो नहीं कर सकती, इट मीन्स कौन कर सकता है, केवल एडिडास यूज़ कर सकता है इसको। इट मीन्स एडिडास हैज़ अ ट्रेडमार्क, कि एडिडास का ट्रेडमार्क है ये, और एडिडास का इस पे राइट है। और जिन चीज़ों के ऊपर हमारा राइट है, आपको बताया था अभी, वो सब हमारे लिए एसेट्स होती हैं। नेक्स्ट थिंग आई टोल्ड यू, आई थिंक सॉफ्टवेयर। देखिए, अच्छा, अब आपको ये भी क्लियर होगा कि ट्रेडमार्क को आप में से कोई भी, जैसे ये पेन है, इसको होल्ड कर रखा मैंने, सो कैन यू होल्ड द ट्रेडमार्क? आप ट्रेडमार्क को होल्ड कर सकते हैं? नो, नो वन कैन होल्ड द ट्रेडमार्क बिकॉज इट्स जस्ट अ सिंबल। ये एक सिंबल है, आप देख तो सकते हैं इसको, बट इसकी कोई फिजिकल ऐसी एग्जिस्टेंस नहीं है कि ये स्पेस कवर करती है, कोई स्पेस कवर नहीं करता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ व्हाट, तो सॉफ्टवेयर क्या है, ये भी आपको पता है कि सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो एन इंटेंजिबल थिंग। बिकॉज आपके फ़ोन में, सबके फ़ोन, हम सारे लोगों के फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं, ऐप्स जिन्हें हम कहते हैं, सो ऑल दी ऐप्स आर सॉफ्ट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। आप किसी भी ऐप को क्या अपने हाथों में होल्ड कर सकते हैं? नहीं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ इट, बट यू कांट होल्ड अ सॉफ्टवेयर। आप किसी सॉफ्टवेयर को होल्ड नहीं कर सकते। तो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर अबाउट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट थिंग, कॉपीराइट। कॉपी राइट, कि जैसा कि हम यहाँ बात कर रहे थे ट्रेडमार्क में, कि ईच एंड एवरी फर्म हैज़ इट्स ओन ट्रेडमार्क। हर एक फर्म का अपना अपना ट्रेडमार्क होता है। कि सपोज़ कोई फर्म है, जैसे नाइक का ट्रेडमार्क काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सो इफ़ एनी वन एल्स, यदि कोई दूसरा इंसान इस ट्रेडमार्क को कॉपी करना चाहे तो वो कॉपी नहीं कर सकता। ही और शी कैन कॉपी इन ओनली वन कंडीशन, इफ़ द एग्जिस्टिंग ओनर, जो एग्जिस्टिंग ओनर है इस कॉपीराइट का, जिसके पास पहले से ये राइट है, वो अगर अपनी कॉपीराइट को सेल करे, सेल इन द सेंस, वो बोले कि आई एम गिविंग द राइट टू दिस पर्सन, मैं इस पर्सन को अधिकार दे रहा हूँ कि ये मेरे प्रोडक्ट का, ये जो सिंबल है मेरे सिंबल का, कॉपी कर सकता है, और कॉपी करने का राइट दे दिया। इट मीन्स, बट इन रिटर्न ऑफ राइट, जो एक्चुअल ओनर है, ही विल चार्ज सम अमाउंट फ्रॉम हिम, वो उससे कुछ पैसा बदले में लेगा। तो दैट इज कॉपीराइट। अपार्ट फ्रॉम दिस आई टोल्ड यू अबाउट पेटेंट, वन थिंग ऑल्सो इज देयर, दैट इज पेटेंट। तो व्हाट इज पेटेंट? स्पेशल राइट टू प्रोड्यूस समथिंग। स्पेशल राइट टू प्रोड्यूस समथिंग, कि किसी भी चीज़ को बनाने का स्पेशल अधिकार, जो कि जनरली गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, विच इज़ जनरली गिवन बाय द गवर्नमेंट। स्पेशल राइट टू प्रोड्यूस समथिंग, की कोई भी चीज़ है उसको बनाने का केवल राइट आपके पास है। इट मीन्स यू हैव पेटेंट, इट मीन्स यू हैव पेटेंट। पेटेंट जो है वो जनरली 10 ईयर्स के लिए मिलता है, कम से कम 10 सालों के लिए इंडिया में पेटेंट मिलता है। पेटेंट क्या है? कि किसी भी चीज़ को बनाने का स्पेशल राइट। स्पेशल राइट मीन्स, सपोज इज देयर एनी प्रोडक्ट इन द मार्केट, सो ओनली यू हैव द राइट टू प्रोड्यूस दैट थिंग। कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में है तो केवल आपको अधिकार है उस प्रोडक्ट को बनाने का, और कोई कंपनी और कोई फर्म उसको नहीं बना सकती। तो देखो, जब केवल आपके पास राइट है उसको बनाने का, सो इन दैट कंडीशन उस वो प्रोडक्ट की डिमांड जितनी भी होगी वो केवल आपके पास से ही सेल होगी, और आपके पास ही इस इंडिविजुअल सेल है। इट मीन्स आप अच्छा खासा प्रॉफिट उससे अर्न कर सकते हैं। जैसे कि अब बात करें कोविड वैक्सीन, जो भी फर्म कोविड वैक्सीन बनाएगी, अगर गवर्नमेंट ने उसे पेटेंट दे दिया, पेटेंट इन द सेंस उसको अधिकार दे दिया कि ओनली नाउ यू कैन ओनली प्रोड्यूस अ कोविड वैक्सीन, केवल अब आप ही कोविड वैक्सीन प्रोड्यूस करेंगे आने वाले 10 ईयर्स तक। तो सोचिए इस कंपनी की, जिस कंपनी ने भी इन्वेंशन किया होगा, उसका कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर गवर्नमेंट ने दे दिया तो। ठीक है, तो दैट इज़ कॉपीराइट। सो आई थिंक बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर क्लियर नाउ। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल की जो बात कर रहे थे हम, शायद दोनों समझ में आ गए होंगे। टेंजिबल एसेट मीन दोज एसेट विच वी कैन सी, टच एंड विच हैविंग अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। इंटेंजिबल एसेट्स मीन्स दोज एसेट विच वी कांट सी, एंड यू कैन से विच डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ फिक्स एसेट। सेकेंड थिंग यू कैन सी
Second type is investment. Investment is also a non-current asset generally. The investment can be short term, for medium term, and for long term also. But generally, if no information is mentioned, investment can be for short term, medium term, long term. ये investment तीनों टाइम टर्म्स के लिए हो सकता है, कम समय के लिए भी, मिड टाइम पीरियड के लिए भी, और लंबे टाइम पीरियड के लिए भी. सो जनरली इफ नथिंग इज मैंशन अलॉन्ग विद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ नहीं दिया होता, तो हम इसे क्या मानते हैं? लॉन्ग टर्म. व्हाट वी आर एज्यूमिंग इट? वी आर एज्यूमिंग इट एज अ लॉन्ग टर्म. सो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एन एसेट. कहीं पैसा इन्वेस्ट करना भी क्या है? एक एसेट ही कहलाता है. इसके अलावा आप देखेंगे डिफर्ड टैक्स एसेट मीन्स, और भी इसके अलावा 2-3 पार्ट हैं, बट दैट इज नॉट फॉर योर यूज इन क्लास 11th. दैट वी हैव टू स्टडी इन 12th. सो जस्ट लीव दैट. सो आई होप assets are clear. This was your non-current asset only. Now moving toward the current assets. So current assets, I told you, which having lifetime, which having value up to 1 year, कि जिनकी वैल्यू 1 साल तक है हमारे पास, या जिनकी एग्जिस्टेंस फॉर 1 ईयर, जिनकी एग्जिस्टेंस हमारे पास केवल 1 साल तक के लिए है, उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं. सो करंट एसेट्स इंक्लूड्स कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल. कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड expense, accrued income, etc. So these are few examples of current assets. कि देखिए आपके पास जो कैश है, that will also not with you for more than 1 year. कि suppose right now you have a 500 rupees in your pocket, तो क्या हमेशा वो 500 ही रहेगा? वो भी 1 साल तक नहीं. विद इन 1 ईयर डेफिनेटली इट्स वैल्यू विल चेंज. और 1 ईयर क्या, 1 से 2 दिन में उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. इट मीन्स दिस इज योर करंट एसेट. सेम बैंक बैलेंस, जो आपका बैंक बैलेंस है, दैट इज ऑल्सो योर करंट एसेट, बिकॉज द वैल्यू ऑफ बैंक बैलेंस इज ऑल्सो नॉट रिमेन सेम फॉर द 1 ईयर. कि बैंक बैलेंस की वैल्यू भी 1 साल से ज़्यादा तक सेम नहीं रहती है, उसमें चेंज आ ही जाता है. नेक्स्ट थिंग इज स्टॉक. नेक्स्ट क्या है हमारा? स्टॉक. स्टॉक मीन्स द प्रोडक्ट विच यू आर प्रोड्यूसिंग. सो द स्टॉक ऑफ दैट प्रोडक्ट मीन्स जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उनको जितना स्टोर करके रखा है, वो क्या हमारा स्टॉक. तो स्टॉक भी हर एक फर्म का कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. इफ़ द फर्म इज़ गोइंग ऑन, अगर फर्म अच्छा काम कर रही है, अच्छी खासी चलती जा रही है, तो इन कंडीशन में द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ऑल्सो चेंजिंग कंटिन्यूसली. सो स्टॉक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ करंट एसेट. नेक्स्ट थिंग इज डेटर्स. सो डेटर आई एक्सप्लेन टू यू ऑलरेडी कि पर्सन हु आर टेकिंग क्रेडिट फ्रॉम द फर्म, वो लोग जो कि फर्म से उधार लेते हैं, वो लोग जो कि फर्म से यानी कंपनी से उधार ले रहे हैं, दे आर कॉल्ड डेटर्स. नेक्स्ट थिंग इज बिल